system, perspective, and imperatives, organized by the Department of English, University of Rajasthan, Jaipur. As we gather once here for the concluding session of this 2 day international conference, we take this moment to reflect upon the enriching academic discussions, insightful deliberations, and meaningful exchanges that have marked the journey of this conference. To begin this auspicious occasion, we commence with the lighting of lamp, symbol of knowledge, wisdom, and new beginnings. I invite our dignitaries and its distinguished guests to kindly come forward and join in the ceremonial tradition. इन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् To mark the solemn and dignified beginning of today's proceedings, we shall now listen to the University Kulgeet, which reflect the rich heritage, core values, and academic spirit of our institute. The Kulgeet symbolizes our collective commitment to knowledge, discipline, and the pursuit of excellence. I kindly request everyone to please rise for the University Kulgeet. गुरुकुल पावन कला पंचवन तपोभूमि महिमामय ज्ञान सदन विज्ञान निकेतन जयति विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय गुरुकुल पावन कला पंचवन तपोभूमि महिमामय ज्ञान सदन विज्ञान निकेतन जयति विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय धर्म प्रतिष्ठा अखिल विश्व की यह घोष हमारा चले चेतना दीप यही पर दौड़त मिलती धारा धर्म क्षेत्र यह आदर्शों का संस्कृति का सूर्योदय
ज्ञान सदन विज्ञान निकेतन जयति विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान इस नंदन वन की सौरभ को दिश दिश में फैलाए कर्मठ तन में निर्मल मन का नवालोक जगाए शांतुला की नगरी की है इसका ब्राह्मण निर्भय ज्ञान सदन विज्ञान निकेतन जयति विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय Thank you so much. You may kindly be seated. Ladies and gentlemen, to honor our esteemed guests for their valuable time and their presence, we shall now proceed with the Atiti Satkar. I invite Dr. Aditi Kalra to felicitate Dr. Parmeshwar Gangawat, our distinguished valedictory address speaker. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I now invite Dr. Pooja Joshi to the stage to welcome Professor Devrat Sharma, our session chair, with Shrifal and shawl. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you to all our distinguished guests. Your presence has truly enriched this conference. With this warm welcome, we now proceed with the next segment of our session. To officially commence this session, I now invite Professor Deepa S.P. Mathur, the convener and head, to deliver the welcome address. Ma'am. Greetings, everybody. All right, ma'am. Greetings, everybody. A very warm welcome and scholarly afternoon to this august gathering. Respected Professor Devrat Sharma, chair of this valedictory session, distinguished valedictory speaker, Dr. Parmeshwarji Gangawat, honored guests on the dais, esteemed colleagues, scholars, and students. It is a distinct privilege to welcome you to the valedictory session of our two-day international conference on Indian knowledge system, perspectives, and imperatives. As scholars of literature, we understand that every conclusion is also a preface to deeper understanding. This moment marks merely the conclusion of our proceedings. Rather, this culmination bestows a pivotal opportunity to synthesize the wealth of knowledge shared, the narratives explored, and the intellectual friction that has sparked new ideas over this period. Our deliberations have prompted us to revisit foundational epistemologies, engage with contemporary challenges, and envision fresh trajectories for scholarly inquiry. This conference, through its rich interdisciplinary exchanges,
has reaffirmed that Indian knowledge systems are not static relics or museum artifacts of the past. Rather, they are vibrant, living intellectual traditions. They offer profound insights that enrich our learning tradition, our ethics, and our critical understanding of the human scenarios. The rigor of the sessions, ranging from the subtle insights of interpretation to the imperatives of cultural preservation. It is a testament of dedication of our speakers. I must also acknowledge the tireless efforts of our volunteers, whose invisible labor behind the scenes have been scaffolding of this entire event. I extend a particularly warm welcome to Professor Devraj Sharma and Dr. Parmeshwarji Gangawat. We will look forward to your reflections, which will undoubtedly help us draw together the diverse threads of this conference into a coherent tapestry of insight. As we move towards the presentation of the conference report and the screening of our film, I hope this session encourages us all to carry these dialogues back to our own classrooms and research desks. Your invaluable presence, all of you who are present here, each personally known to me, I hope this session encourages us all to carry these dialogues back to our classrooms and research desks. Your invaluable presence and scholarship are worthy appreciation. Thank you all. Thank you so much, ma'am, for that insightful and gracious welcome address. We now move on to the much awaited valedictory address. It's our honor to have Dr. Parmeshwar Gangawat with us today. Dr. Gangawat is a distinguished scholar and researcher in Jyotish astrology, widely recognized for bringing international recognition to India. With achievements spanning India, the USA, England, and Germany. Dr. Gangawat has made significant contribution through original research, academic writings, and scholarly publications, and his work has been featured in reputed journals and platforms. Renowned for his dedication to research and education, he continues to play an important role in advancing Jyotish studies with academic rigor and global relevance. Dr. Parmeshwar will be sharing his closing thoughts on the conference theme. Sir, we are eager to hear from you. हेलो वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम्
आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नारायणं समारम्भ शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् गोवर्धनमठाधीशं भक्तानुग्रहकारकं श्रीमन्तं निश्चलानन्दं जगद्गुरुं नमाम्यहम्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, भगवती विमलांबा देवी की जय हो, भगवान आदि शंकराचार्य की जय हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग की जय हो, श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। राजस्थान विश्वविद्यालय आंग्ल भाषा एवं साहित्य विभाग द्वारा आयोजित भारतीय ज्ञान प्रणाली दृष्टिकोण एवं आवश्यकताएं विषय पर संगोष्ठी में एक धर्माचार्य के रूप में मुझे बुलाया गया है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दीपा मैडम, कन्वीनर डॉक्टर अरुण सिंह जी, डॉक्टर अदिति जी और विभाग के सभी आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्यगण, आदरणीय प्रोफेसर देवव्रत शर्मा जी, प्रोफेसर अरुण सोल जी, प्रोफेसर संजय अरोड़ा जी एवं समुपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विभाग को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे अभी तक के संज्ञान में किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी अंग्रेजी विभाग द्वारा ऐसी संगोष्ठी, ऐसी कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की गई कि अंग्रेजी विभाग की कॉन्फ्रेंस हो और उसमें अन्य भारतीय भाषाओं का भी समायोजन हो और ज्ञान विज्ञान के रूप में किसी धर्माचार्य को वहां पर उद्बोधन देने के लिए बुलाया हो। ये परंपरा राजस्थान विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा आरंभ की गई। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक भाषाविद होने के नाते सभी भाषाओं का सम्मान करना, समादर करना कर्तव्य है हमारा, किंतु मातृभाषा के प्रति जो अपनत्व है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष का जो नाम पड़ा, भारत, बिल्कुल इसके टॉपिक से ही आरंभ करते हैं। भारत जो नाम पड़ा, मां भारती के नाम पर यह नाम पड़ा भारत, और मां भारती नाम है भगवती सरस्वती का, विद्या की देवी का। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती को भारती कहा गया और कला एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में उनका वर्णन किया गया। विष्णु पुराण में ज्ञान
बुद्धि, कला एवं कौशल की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती। ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि ज्ञान चाहिए तो भगवती सरस्वती की शरण में जाए, धन चाहिए तो भगवती महालक्ष्मी की शरण में जाए, और शक्ति चाहिए तो भगवती दुर्गा की शरण में जाए। अन्य ऐसी कोई संस्कृति आज तक मुझे तो देखने को नहीं मिली कि जिसमें मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया गया हो जो सम्मान हमारी संस्कृति के अंदर दिया गया। फेमिनिज्म का उत्कृष्ट उदाहरण भारतीय मानव धर्मशास्त्र से बेहतर कहीं अन्य देखने को नहीं मिलेगा हमें। भगवान सूर्य ने मय को उपदेश दिया, ततद्वादश सहस्त्राणि चतुर्युगम उदाहृतम सूर्याब्द संख्याद्वितरी सागरैरयुताहृतई संध्या संध्यांश सहितम विज्ञेयम तच्चतुर्युगम कृतादीनम व्यवस्थेयम धर्मपादव व्यवस्थया। 4,32,000 वर्ष ये कलयुग का मान, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर का मान, 12,96,000 ये त्रेता का मान, और 17,28,000 वर्ष ये सतयुग का मान। चारों महायुगों का मान मिलाएं तो 43,20,000 वर्ष हो जाता है। इसे एक महायुग कहा गया। और ऐसे 1,000 महायुग जब व्यतीत हो जाते हैं, अर्थात एक बार कलयुग, 1,000 बार कलयुग निकल जाए, 1,000 बार द्वापर निकल जाए, 1,000 बार त्रेता निकल जाए और 1,000 बार सतयुग निकल जाए, उसे कहा गया एक कल्प, जिसमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। ये एक कल्प जो कहा गया हमारे यहां 4 अरब 32 करोड़ का, ये ब्रह्मा जी का एक दिन। वस्तुतः आपको बताऊं कि ब्रह्मा एक पद का नाम है। जिस प्रकार प्रिंसिपल एक पद का नाम है, उसी प्रकार ब्रह्मा और इंद्र हमारे यहाँ भारतीय धर्मशास्त्र के अंदर ये पद कहे गए हैं। ये पद हैं। कार्यकाल पूरा होने पर नए ब्रह्मा आते हैं और पुराने ब्रह्मा अपनी आयु को पूर्ण करके चले जाते हैं। तो एक कल्प में 4 अरब 32,000 वर्ष हो गए। वर्तमान में अभी जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का नाम है श्री श्वेत वाराह कल्प। और इस श्री श्वेत वाराह कल्प के 28वें कलयुग में अभी हम लोग हैं, 28वें कलयुग के अंदर। और अट्ठाईसवें जिस कलयुग के अंदर हम निवास कर रहे हैं, इसमें हमारी परंपरा को, वैदिक परंपरा को 1,97,29,49,125 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। भारतीय परंपरा को, ज्ञान परंपरा को, ये मैं पूरे तथ्यों के आधार पर सत्य बोल रहा हूं, ये पूरे तथ्यों के आधार पर रिसर्च ओरिएंटेड है पूरा की पूरा। ये 1,97,29,49,125 वर्ष व्यतीत हो गए। 126वां वर्ष अब जो चैत्र शुक्ल प्रतिपद आएगा उससे आरंभ होने वाला है। इतनी ज्ञान विज्ञान की उन्नत और समृद्ध परंपरा जो हमारे यहां रही, वह अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती। इसी ज्ञान विज्ञान की परंपरा के अंदर हम बात करें भगवान आदि शंकराचार्य की, कुछ तथ्यों को, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया हमारे यहां। क्योंकि मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री एक वामपंथी को बनाया गया। बहुत खुल करके बोल रहा हूं। इस वामपंथ ने और मानसिक कुंठा से विक्षिप्त मानसिकताओं ने हमारी शिक्षा प्रणाली को जिस प्रकार से, हमारे समाज को जिस प्रकार से विकृत किया है, आज की स्थिति और आज की दशा हमारी निश्चित रूप से बड़ी शोचनीय हो गई है। खैर, तथाकथित हिस्ट्री, इतिहास नहीं कहूंगा, हिस्ट्री में और इतिहास में अंतर है। जिस प्रकार फिलॉसफी में और दर्शन में अंतर है, तो हिस्ट्री हो सकती है, इतिहास नहीं है। इतिहास का मतलब इतिहास, ऐसा हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। ईसा से 507 वर्ष पूर्व भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री में बताया गया हमारे यहां कि 7वीं सदी में भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ है।
केरल का एक जिला एर्नाकुलम, उसका छोटा सा एक गांव काल्टी 507 ईसा वर्ष पूर्व आर्यांबा और शिव गुरु के यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत और मात्र 3 वर्षों की अवधि के अंदर 8 वर्ष की अवधि तक उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया। क्या कल्पना कर सकते हैं आपकी एक 5 वर्ष का बालक 3 वर्ष की अवधि में चारों वेदों का अध्ययन कर ले। 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर के घर से निकल गए। 8 से 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे। 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु में 8 वर्षों के अंदर। हमारे यहाँ जगत गुरु की उपाधि उसे दी जाती है जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने की योग्यता रखता हो। प्रस्थान त्रयी का तात्पर्य भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र एवं 108 उपनिषद। इन पर जो भाष्य लिखने की योग्यता रखता हो, जिसने इन पर भाष्य लिखा हो, उसे ही जगत गुरु कहा जाता है। यह विडंबना है कि आज सैकड़ों नहीं हजारों नकली और फर्जी जगत गुरु बनकर के भारत में भ्रमण कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। क्या आपने कभी देखा कि कोई नकली एमएलए, नकली एमपी, नकली मिनिस्टर, नकली मंत्री, नकली प्रधानमंत्री, नकली मुख्यमंत्री बनकर के घूमे? धार्मिक क्षेत्र में इतनी अराजकताएं समुत्पन्न कर देना कि अराजक तत्वों को नकली जगत गुरु और नकली शंकराचार्य बना करके घुमाना। शायद किंचित आपको बड़ी अतर्क संगत बातें मेरी प्रतीत हो रही हो, लेकिन आज के सामाजिक दृष्टिकोण से मैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। धर्म जो है वो जीव जगत की धुरी है। भारत की केंद्रीय सत्ता धर्म है और धर्म शब्द से ऐसी चिढ़ मची हुई है। मैं बैक आपको ले जाना चाहूंगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जहां विंस्टन चर्चिल ने कहा कि 200 वर्षों तक हमने इस राष्ट्र पर शासन किया और यहां से बहुत कुछ हमने लिया और जाते समय यहां गृह युद्ध की स्थिति हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि धर्म और मजहब के नाम पर 2 भागों में इस देश को तोड़ दिया जाए, 2 भागों में इसका विभाजन कर दिया जाए। एक हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान या भारत और दूसरा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। सैद्धांतिक धरातल पर देखा जाए तो एक भूमि के भाग को काट करके इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन एक बहुत बड़े भूभाग को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपेक्षा अनेक प्रकार की भ्रांतियां हिंदुओं के मन में उत्पन्न कर दी गईं। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के उपरांत भी हिंदू भारत में 1 नंबर का नागरिक नहीं है। एक राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं किसी भी दुर्भावना से ग्रस्त होकर के नहीं कह रहा, सभी रिलीजन, सभी पंथ, सभी मजहबों का सम्मान है, किंतु ईमानदारी की बात है कि जब एक पार्टी का नेता चुनकर के प्रधानमंत्री बनाया जाता है और वो कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और हिंदुत्व का नाम लेकर, हिंदू का नाम लेकर के एक दूसरी पार्टी आती है और उस पार्टी का चुना हुआ प्रधानमंत्री कहता है कि हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदू कोई रिलीजन है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। क्यों भाई, धर्म के नाम पर इतनी चिढ़ क्यों होती है? और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता, आंखें बंद कर लेने से, कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख करके और सोचता है कि बिल्ली चली गई, किंतु मित्रों बिल्ली गई नहीं है, आंखें बंद करने से आएगी और कबूतर को मार के और उसके प्राणों का अंत कर देगी। वही स्थिति आज देश में नागरिकों की है। एक ब्रेन वॉश जिस प्रकार का करके और बड़ी अराजक स्थिति यहां पर बना दी गई है।
इस प्रकार की स्थिति मैकॉले ने जो संबोधन दिया था 5 मार्च 1832 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, आई विजिटेड इंडिया थ्राइस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, आई डिडंट सी इवन अ सिंगल पर्सन हु इज अ बैगर, हु इज अ क्रिमिनल और हु इज अ थीफ। आप सोचिए 1832 में भारत के रेलवे स्टेशन पर मैकॉले को कोई एक भी चोर नहीं मिला, उसे एक भी अपराधी नहीं मिला, उसे एक भी भिखारी नहीं मिला। 1832 की बात है, और आज निकल करके बाहर देख लीजिए किसी भी सड़क पर। क्यों इस प्रकार की स्थितियां देश में उत्पन्न हुई? कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को खदेड़ खदेड़ करके भगा दिया जाता है, धर्म पूछ पूछ करके उन्हें गोली मार दी जाती है, और कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, सहमत करता हूं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। सही बात है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। ऐसी स्थितियां जब देश में उत्पन्न कर दी जाती हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, सत्ता के नाम पर, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आज भी हिंदू भारत में 1 नंबर का नागरिक नहीं है, 2 दर्जे का नागरिक है हिंदू आज भी भारत के अंदर। कुछ शब्द ऐसे फैलाए गए हैं कि वो अपशब्द लगते हैं, गाली लगते हैं आज लोगों को, उनको विकृत करके ऐसा परिभाषित कर दिया जाता गया है, अरे ये तो सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता की बात हो गई, धर्मनिरपेक्षता है। एक पाठ्यक्रम में हमारे यहां पढ़ाया जाता है, आंग्ल भाषा स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में एक टॉपिक आता है फैलेसीज, तर्क दोष। एक फैलेसी का नाम है आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। A woman died in her childhood. An old lady died in her childhood, कि एक बुढ़िया बचपन में मर गई। अब यदि बुढ़िया है तो बचपन में कैसे मरी, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई? इसी प्रकार हिंदी में कहा जाता है वंध्या पुत्र, यानी जिसे बच्चे नहीं होते उसका पुत्र। तो इसी प्रकार का एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, जो गढ़ दिया गया है यहां संविधान के अंदर। धर्म का अर्थ यदि देखें, बड़ा विस्तृत अर्थ है धर्म का। धर्म का अर्थ यदि करने बैठे तो बड़ी बड़ी सार के अंदर कहें तो धर्मम ध्रियते लोकेन, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है, अपना कर्तव्य है, जो करने योग्य कार्य है। अकृत्यम नैव कृत्यम स्यात् प्राण त्यागे अप्युपस्थिते नैचे परित्याज्यम एषे धर्म सनातनः, कि जो ना करने योग्य कार्य है, जिसे नहीं करना चाहिए, प्राण जाने की स्थिति भी आए तो भी ऐसा कार्य नहीं किया जाए। यदि प्राण भी जाने हो तो भी उस काम को हम नहीं करें जो नहीं करना चाहिए, और जो करने वाला कार्य है उसे अवश्य करे ही करें। ऐसे धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। अब कुछ बड़े ज्ञानी लोग कह देते हैं कि साहब धर्म का, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। एक पार्टी के चुने हुए नेता प्रधानमंत्री बन करके आए अभी, और उन्होंने कहा कि हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, हम मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म है। कोई कहता है कि पारसियों का दिया हुआ शब्द है। भैया थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, बृहस्पति आगम में बहुत पहले परिभाषा दे दी गई है। हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। दुनिया का सबसे पुराना लिखित अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हिंदू शब्द आया है। हमारे पूज्य गुरुदेव पुरी शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग ने 200 से ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आज ये जो मोबाइल और ये लैपटॉप वगैरह हम लेकर के बैठे हैं, इसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें होता है बाइनरी मैथमेटिक्स, बाइनरी डिवाइस। और वैदिक गणित के माध्यम से विश्व को वैदिक गणित दे करके बाइनरी मैथमेटिक्स के सिद्धांत को कंप्यूटर की भाषा में लागू करवाने का काम किया था गोवर्धन मठ के 143वें शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने। आज ये जो मोबाइल और ये लैपटॉप और ये कंप्यूटर पूरा विश्व अगर लेकर के बैठा है, ये गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी की देन है। कितने लोगों को पता है? ये बात नहीं पता। चीजें निकल करके, तथ्य निकल करके सामने नहीं आते हैं।
वर्ष 2000 में जब विश्व बैंक डूब रहा था, वर्ल्ड बैंक जब डूब रहा था, तो वहां की डायरेक्टर एक लेडी थी, वो भ्रमण के ऊपर आई भारत और आकर के गोवर्धन मठ का उन्होंने नाम सुना था कि यहाँ वैदिक गणित का बड़ा प्रचलन है, वैदिक गणित के अच्छे विद्वान होते हैं यहाँ के शंकराचार्य परंपरा से। और उन्होंने आकर के कहा कि महाराज विश्व को डूबने से बचाइए, हो सके तो पूरा विश्व आर्थिक मंदी से आज जूझ रहा है। तमिलनाडु के एक अधिकारी थे, उन्होंने दुभाषीय का काम किया वहां पर, संस्कृत और हिंदी को समझकर शंकराचार्य महाराज की अंग्रेजी के अंदर उन्होंने ट्रांसलेशन किया और आंग्ल भाषा में जो कहा गया उसे हिंदी में कह करके उनको बताया। मात्र 7.5 मिनट के अंदर गोवर्धन मठ के शंकराचार्य पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने डूबती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था को बचाने का सूत्र उन्हें दे दिया 7.5 मिनट के अंदर। और वो जो चेयरपर्सन थी वो रोने लगी। गुरुदेव ने कहा कि बेटी रोती क्यों हो, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूं कि इतनी जबरदस्त मेधा शक्ति भारत के पास है कि पूरे 8 महीने से हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि डूबती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए। 80 करोड़ रुपए हम इस पे खर्च कर चुके हैं अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए। 80 करोड़ रुपए खर्च करके 8 से 10 महीने भ्रमण करके और हमें कुछ नहीं मिल रहा। और 7.5 मिनट में आपने इसका समाधान कर दिया। इतनी जबरदस्त मेगा शक्ति का उपयोग भारत क्यों नहीं करता है, इस बात पर मैं रो रही हूं। अब विडंबना यह है कि सरकारें यदि किसी प्रबुद्ध धर्माचार्य, धर्मगुरु के पास जाती हैं तो सांप्रदायिकता का ठप्पा लगा दिया जाता है। अब सुनिए, एक शब्द मैंने आपको बताया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कहा गया। तो धर्म का अर्थ क्या है? जिसे धारण किया जाए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम, कि महर्षि वेदव्यास ने कहा कि परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना यह सबसे बड़ा पाप है। और पाप से निवृत्ति हो और पुण्य की प्राप्ति हो, यही धर्म का मार्ग है। अब धर्म की परिभाषा में मानव होने के दृष्टिकोण से हम देखें तो सत्य, अपरिग्रह यानी चोरी नहीं, ये अपरिग्रह का अर्थ होता है कि ये अपनी क्षमता से अधिक का संग्रह ना करना। ये जो कम्युनिस्ट जो थ्योरी है, कम्युनिस्ट जो सिद्धांत है, महाभारत का एक सिद्धांत था आर्ष सिद्धांत, उसको विकृत करके कम्युनिस्टों ने अपना सिद्धांत बना लिया। उस विषय पर अभी हम आएंगे थोड़ी देर के अंदर। किंतु धर्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मानवोचित शील, सदाचार, संयम, सत्य, दया, करुणा, प्रेम, सदाचार, सहयोग, ये सब मानव के गुण धर्म है। और यदि इनको मानव में से हटा दिया जाए तो मानव मानव बचेगा या पशु हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सत्ता की उपयोगिता तब तक है जब तक उसका गुणधर्म उसमें विद्यमान है। नमक में से उसका खारापन हटा दीजिए, नमक का गुणधर्म है उसका खारापन हटा दीजिए, नमक में नमक की क्या उपयोगिता रहेगी। जल का गुणधर्म क्या है? उसकी शीतलता, उसकी आर्द्रता, उसकी पिपासा को बुझाने की क्षमता, प्यास को बुझाने की क्षमता, वो जल का गुणधर्म है। जल के अंदर से वो हटा दीजिए, जल की क्या उपयोगिता रह जाएगी। अग्नि की उपयोगिता है उसकी ज्वाला, उसका ताप, उसका दहन, उसका प्रकाश। अग्नि के अंदर से यदि वो हटा दिया जाए तो अग्नि की क्या उपयोगिता रह जाएगी। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु या सत्ता की उपयोगिता तभी तक सिद्ध होती है जब तक उसका गुणधर्म उसमें विद्यमान है। मानवोचित शील, संयम, सदाचार, इन गुणधर्मों को हटा दीजिए तो मानव मानव रहेगा क्या? तो धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या रहा? एक शब्द कर दिया गया सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं। भैया सांप्रदायिक होना तो बहुत अच्छी बात है। हथेली एक, उसके 5 भाग। गुरुदेव एक बड़ा अच्छा उदाहरण देकर के समझाते हैं कि एक हथेली है, उसके 5 भाग है। 5 उंगलियां हमारी, 4 उंगली, 1 अंगूठा। तो उसी प्रकार से निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वहन करने के लिए हिरण्य गर्भात्मक सूर्य के रूप में स्वयं को उद्भासित करते हैं। पालन नामक कृत्य का निर्वहन करने के लिए वो सच्चिदानंद आनंद कन परमात्मा अपने आप को भगवान विष्णु के रूप में उद्भासित करते हैं। अनुग्रह या कृपा की प्राप्ति के लिए गणपति के रूप में, और जीवन में शक्ति, निग्रह अथवा तिरोधान की प्राप्ति के लिए भगवती दुर्गा के रूप में, और संहार क्रम का निर्वहन करने के लिए
शिव के रूप में। तो 5 हमारे यहां संप्रदाय हैं और किसी संप्रदाय विशेष से दीक्षा प्राप्त करके उस संप्रदाय विशेष के अनुशासनात्मक जीवन प्रणाली के अंदर जीवन जीना, यह सांप्रदायिकता कहलाती है। शिव के उपासक शैव, विष्णु के उपासक वैष्णव, सूर्य के उपासक सौरी, गणपति के उपासक गाणपत्य और देवी भगवती के उपासक शाक्त। तो किसी संप्रदाय विशेष से दीक्षा प्राप्त करके उस अनुशासनात्मक जीवन प्रणाली में जीवन जीना, यह सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता तो बहुत अच्छी चीज है। हमारे यहाँ जिसका गुरु नहीं होता ना, जिसका कोई गुरु नहीं है, उसे निगुरा कहा जाता है। एक अपशब्द है निगुरा। अरे निगुरा है, निगुरा अर्थात जिसका कोई गुरु नहीं है। तो भैया सांप्रदायिक होना तो बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन शब्दों को इतना दूषित करके बताया गया, इतना दूषित करके इन शब्दों को बताया गया कि अर्थ ही बदल दिया। प्रशस्त सनातनी मान बिंदुओं को धूल धूसरित कर आकंठ सत्ता के व्यामोह में ग्रसित राजनेताओं के छद्म स्वार्थ, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि राजनीतिक चरित्र और कार्यशैली प्रत्येक राजनीतिक दल की बिल्कुल एक जैसी है, हम कोई अलग नहीं है। आजकल खैर वैसे राजनेता नहीं रहे, बहुत अच्छी बात कह करके गए थे। हमारे यहां विडंबना है कि कोई हिंदू है भाजपाई हिंदू, कोई है कांग्रेसी हिंदू, कोई है सपाई हिंदू, कोई है बसपाई हिंदू, किंतु सनातनी वैदिक आर्य हिंदू कितने हैं? बड़े क्षोभ का विषय, बड़े दुख का विषय। धर्म को भी राजनीतिक पार्टियों का चश्मा लगा करके, सत्ता का चश्मा लगा करके देखा जाता है। पृथ्वी के 7 धारक तत्व, गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तर्भिर्धायते मही। पृथ्वी के 7 धारक तत्व हैं। गौ गाय, विप्र वेद, सती सत्यवादी, अलोभी जिसे लोभ नहीं हो किसी प्रकार का, और दानशील। ये 7 पृथ्वी के धारक तत्व हमारे यहां पर कहे गए हैं। एक बड़े अच्छे शब्द के ऊपर आऊंगा अभी, जिसे भी बड़ा विकृत किया गया था, सती, उस पर आएंगे। गौ, हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मूर्त स्वरूप जब कहा गया तो कहा गया वृषभो ही धर्म, अर्थात धर्म का स्वरूप, धर्म जब मूर्त रूप में प्रकट होते हैं तो महादेव के नंदी के रूप में वो प्रकट होते हैं। आज हम धर्म की बात करते हैं और कत्ल खानों में, स्लॉटर हाउस में और बूचड़ खानों में गौवंश को काटा जाता है। लज्जा की बात है कि अपने आप को स्वतंत्र कहने वाले भारत देश में सूर्योदय की प्रथम किरणों के साथ लाखों गौवंश को काट दिया जाता है और हम अपने आप को कहते हैं हिंदू। सरकारों से जब हम निवेदन करते हैं गौवंश को बचाने की तो कहते हैं कि जितने भी इलीगल स्लॉटर हाउस हैं, जितने भी बिना लाइसेंस वाले हैं, उनको हम बंद करवा देंगे। यानी जहां गौवंश को काटने के कारखाने भी लाइसेंस देकर के परमानेंट किए जाते हैं और हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। एक राजनीतिक दल के बड़े प्रखर नेता ने कहा कि तीसरी बार इन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए और उसके बाद जो गौवंश को काटता है उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। और वस्तु स्थिति आज आपको बताना चाहूंगा कि आज गौ मांस निर्यात में भारत विश्व में पहले नंबर पर आ गया। जिंदा नंदी, जिंदा गौवंश हवाई जहाजों से विदेश भेजे जा रहे हैं ताकि विदेशियों को ताजा गौ मांस मिल सके। और हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम धर्म की बात करते हैं। और धर्म का पहला लक्षण जो है, धर्म को धारण करने, प्रत्येक देवी, ऐसा कौन से देवी देवता हैं जिनका निवास गौ माता में नहीं हो, गौवंश के अंदर नहीं हो? मंगल पांडे आज जिस दिव्य लोक में होंगे, क्या खून के आंसू नहीं रोते होंगे कि किनके लिए मैंने स्वतंत्रता प्राप्ति की? 1857 की क्रांति के जनक, उस क्रांति के प्रथम उद्घोषकर्ता हुतात्मा मंगल पांडे, जिन्होंने गाय की चर्बी से लगा हुआ कारतूस काटने से मना कर दिया हो कि इससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। स्वतंत्रता संग्राम, धिक्कार ऐसी स्वतंत्रता के ऊपर जहां गौवंश को काट दिया जाता है।
सर 5 मिनट्स प्लीज, धन्यवाद। ठीक है, चलिए। तो जब हम धार्मिक होने की बातें करते हैं तो बड़े क्षोभ का विषय है। वामपंथी शिक्षा मंत्रियों ने ऐसे ऐसे काम यहां पर किए। देशभक्त छत्रपति शिवाजी को, महाराणा प्रताप को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा। क्या बात नहीं होनी चाहिए वीर महाराजा सूरजमल जी की, जिन्होंने जीते जी, कभी भरतपुर को लोहागढ़ आज क्यों कहा जाता है, जीते जी कभी कोई अंग्रेज, कोई मुगल उसको उस जनपद को जीत ही नहीं पाया, कभी नहीं जीत पाया। ऐसे महाराजा सूरजमल जी को पाठ्यक्रम में क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता? वैदिक गणित के आर्ष सिद्धांत जनकों को क्यों नहीं किया जाता सम्मिलित पाठ्यक्रमों के अंदर? बड़े क्षोभ का विषय है। पृथ्वी के 7 धारक तत्वों में से, चूंकि बहन जी मुझे चेतावनी दे चुकी हैं, 5 मिनट की 2 मिनट शायद व्यतीत हो चुके हैं, एक शब्द आया था सती। सती का अर्थ ये नहीं है कि चिता पर जल करके पति के साथ मर जाए उसे सती कहते हैं, ऐसा नहीं है जी। माताओं का मातृशक्ति का बड़ा सम्मान था। सती सावित्री नाम सुना होगा आपने, उनके तो पति मरे थे, यमराज के पास जाकर के और सत्यवान के प्राणों को ले आई। यह है भारतीय मातृशक्ति, यह है नारी। और जिस मनुस्मृति में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस मनुस्मृति को आज जलाया जा रहा है। आज हम उद्घोष करते हैं जय श्री राम। क्या आपको पता है कि जय श्री राम का जब हम उद्घोष करते हैं तो मनु महाराज की 67वीं पीढ़ी में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। मनु महाराज, स्मृति लिखने वाले मनु महाराज ब्राह्मण नहीं थे, मनु महाराज क्षत्रिय थे। मनु महाराज के वंश में इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न हुआ, महाराजा भगीरथ, महाराजा सगर, और उनकी 67वीं पीढ़ी में भगवान रामभद्र का जन्म हुआ, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। सितंबर सन 1962 में मेरठ के एक मैदान में जय श्री राम का उद्घोष देने वाले थे पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग। अच्छा, जिस प्रकार ये होता है ना कि सब भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व एसपी, इसी प्रकार एक भूतपूर्व साइकिल चोर था। हाँ, भूतपूर्व साइकिल चोर अधोक्षजानंद, भूतपूर्व साइकिल चोर, जिसे उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया था कि एक ही साइकिल को चुरा चुरा करके वो लोगों को बेचा करता था। 2013 तक उसने पानी पी पी करके प्रधानमंत्री को गालियां दी है। और आज चूंकि सत्ता के चरण चाट करके बैठा है हुर्रियत का आतंकवादी, उसे नकली शंकराचार्य बना करके, गोवर्धन मठ का नकली शंकराचार्य उस हुर्रियत के आतंकवादी को बना करके मंत्री घुमा रहे हैं। आज यदि मैं किसी को नकली मंत्री या नकली एमएलए घोषित कर दूं तो आप मेरी मूर्खता पर हंसेंगे ना, भैया तुम होते कौन हो किसी को मंत्री मुख्यमंत्री घोषित करने वाले? तो धर्म जगत की सत्ताओं में नकली शंकराचार्य, नकली जगत गुरु बनाने वाले राजनेता होते कौन है, ये बता दीजिए। फिर कहते हैं कि साहब धर्माचार्य, धर्मगुरु राजनीति में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? अब राजनीति की स्वस्थ परिभाषा सुनिए। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वप्रत हितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, ये करना मानव के संविधान का अंग है। संविधान को कैसा होना चाहिए एक बार सुन लीजिए। जो धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद व्यक्ति समाज की संरचना करे, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न, स्वस्थ, सेवा पारायण व्यक्ति, उनकी रचना समाज के अंदर हो, ये देने में जो सक्षम हो वह संविधान है, जो इस लोक में भी और उस लोक में भी। संविधान ऐसा कि जो ऊपर यमराज के लोक में भी मान्य हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का संविधान बनाते समय जिन 10 देशों के संविधानों को आधारभूत किया गया था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके इत्यादि, जो 10 देशों के संविधान को रख करके भारत का संविधान तैयार किया गया, उन 10 देशों ने अपने संविधान का आधार किसको बनाया था जी? उन 10 देशों ने अपना संविधान मनुस्मृति को बनाया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज मनु महाराज की प्रतिमा लगी हुई है और इस देश में मनुस्मृति को जलाया जाता है। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु से बनने वाले शब्द है मनुष्य, मनु से बनने वाला शब्द है मानव। यदि मनु से इतनी घृणा है तो अपने आप को मानव कहना बंद कर दे, अपने आप को मनुष्य कहना बंद कर दे। दिल्ली में एक व्याख्यान हुआ मेरा मनुस्मृति के ऊपर, और
एक प्रबुद्ध बड़े बुद्धिजीवी ने कहा, आचार्य जी बैंड बजेगी, आपके श्रोता 2000 कम्युनिस्ट है। मैंने कहा आनंद आ गया। अब अपने ही लोगों के बीच में बोला तो क्या बोला। बहन जी 2 मिनट लूंगा मैं, फिर मैं समाप्त करूंगा मेरी बात को। मैं वहां जब 2000 श्रोताओं को मैंने देखा, उनसे पूछा कि मनुस्मृति के साथ क्या करना चाहिए। मनुस्मृति को जला देना चाहिए, आंशिक मानना चाहिए, पूरा मानने देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जला दो, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कलंक है मानवता के ऊपर, ये है वो है। मैंने कहा अब आप में से कितने महानुभावों ने मनुस्मृति का अध्ययन किया है। तो 2000 की ऑडियंस में से 3 या 4 हाथ ऊपर हुए। अब मैंने कहा जी मैं मनोज पॉकेट बुक्स वाली मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑथेंटिक हमारी मनुस्मृति है, 6 टीकाएं उसके ऊपर उपलब्ध है, कुल्लूक भट्ट की, सर्वज्ञ नारायण की, रामचंद्र मिश्र की इत्यादि 6 टीकाएं चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित है। और मनुस्मृति का एक एक श्लोक ईश्वर की कृपा से, भगवती की कृपा से, देवी का उपासक हूं, भगवती की कृपा से मुझे कंठस्थ है। तो जिन लोगों ने अध्ययन कर लिया, आइए मनुस्मृति के ऊपर 2 मिनट बात करते हैं, तो वो 3 हाथ भी नीचे हो गए। नहीं हमने तो सुना था। बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है भैया। जब तक आपकी लिखी हुई पुस्तक को मैं पढ़ ना लूं, ना मैं उसका खंडन कर सकता हूं, ना मैं उसका मंडन कर सकता हूं। अब आइए मनुस्मृति में मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा कि शीशा पिघला करके, लोहा पिघला करके कान में डाल दिया जाए। मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा हुआ। मनुस्मृति मात्र 4 वर्णों की बात करती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हॉल है, ये कमरा है, 4 पिल्लर पे टिका हुआ, 1 2 3 4, चारों स्तंभ। क्या आप किसी भी एक स्तंभ को गिरा सकते हैं कि हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं हटा सकते। प्रशस्त सनातनी मान बिंदु की रीढ़ की हड्डी है ये वर्ण व्यवस्था। शूद्र कोई अपशब्द नहीं है मित्रों, शूद्र का अर्थ है अंत्यज। शूद्र को हमारे यहां, अच्छा एक बात और बताऊं, मनुस्मृति को कहा गया है मानव धर्म शास्त्र। मनुस्मृति को कहा गया मानव धर्म शास्त्र। आजकल तुलसीदास जी की रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, एक चौपाई को लेकर के विवाद किया जा रहा है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे भैया कम से कम जान लो वो हिंदी में नहीं लिखी हुई, वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। और अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ होता है केयरफुल काउंसलिंग, शिक्षा। गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस को भी उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें कहा ये शिक्षा के अधिकारी हैं। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां नारायण से पहले लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः। महेश उमा नहीं कहा, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। और मनुस्मृति में जो विधि निषेध लागू किए गए तो सब बड़ा भड़काया गया हमारी मातृशक्ति को, माताओं की, कि आपको दबा करके रखा गया, ये करा गया, वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, प्रोटोकॉल किसे दिया जाता है? वीआईपी को। तो हमारी वर्ण व्यवस्था में तो मातृशक्ति को वो सम्मान दिया गया है जो किसी भी वर्ण व्यवस्था में नहीं है, जो अन्य किसी भी मजहब में, पंथ में, रिलीजन में नहीं है। अच्छा अदरवाइज मत लेना, एक बात बता रहा हूं, मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूं, एक तार्किक बात कर रहा हूं कि अल्लाह है। कभी आपने सुना अल्ली है? सुना? नहीं सुना। गॉड है, गॉडेस, लेकिन वो छोटे देवी देवताओं की श्रेणी के अंदर रखा गया, गॉड ही तो नहीं कहा गया। ट्रिनिटी की अगर बात करते हैं तो गॉड, सन ऑफ गॉड एंड द होली गोस्ट, दिस इज द ट्रिनिटी। लेकिन हमारे यहां बिना नारायणी शक्ति के नारायण नहीं है, हमारे यहां बिना गौरी के शिव नहीं है। शिव का जो इकार है वो भगवती है, उसको निकाल दो, शिव भी शव हो जाते हैं। हमारे यहां ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्रदान करने वाली भगवती सरस्वती है। ये वो संस्कृति नहीं है। बड़ा दुख हुआ जब प्लेटो को पढ़ा, रिपब्लिक का चैप्टर नंबर मैंने कुछ पढ़ा, वो चैप्टर नंबर निकल गया। विमेन प्रोबेबली डू नॉट हैव सोल, स्त्री में आत्मा नहीं होती। विमेन प्रोबेबली डू नॉट हैव सोल, ये प्लेटो ने लिखा। जैसे टेबल में आत्मा नहीं है, ऐसे आत्मा नहीं है। इसलिए मानवाधिकार आयोग के गठन से पहले अमेरिका में, आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका में स्त्री अपने नाम से बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती थी। अमेरिका के अंदर स्त्री पिता के नाम पे खोलो, पति के नाम पे खोलो, भाई के नाम पे खोलो, किसी रिश्तेदार के नाम पे लो, कोई भी नहीं है, पड़ोसी के नाम पे खोलो। लेकिन मातृशक्ति को अधिकार नहीं था अपने नाम से बैंक अकाउंट भी वो खोल सके। तो आज ऐसे लोग आकर के हमें फेमिनिज्म पढ़ाएंगे, हमें फेमिनिज्म सिखाएंगे। मनुस्मृति के अंदर जब कहा गया
कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इससे बड़ा फेमिनिज्म का उदाहरण आप ढूंढ करके बता दीजिए कहाँ है। और शूद्र जो है, शूद्र का अर्थ होता है अंत्यज। आखिरी मिनट सुनूंगा बहन जी। हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली के अंदर दो प्रकार की व्यवस्था है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल। शूद्र का अर्थ आपको बता दूं, शूद्र का अर्थ SC ST नहीं होता है। शूद्र में 19 जातियां आती हैं। प्रोडक्शन जितना भी था, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है, लघु उद्योग जितने भी हैं, कुटीर उद्योग जितने भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए माइक बनाना, चाहिए मोबाइल बनाना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मेडिकल में सर्जरी, ये सारे शूद्र कर्म है। अब बताइए कौन सा गलत है, कौन सा काम इनके अंदर से गलत है? इंजीनियरिंग कंप्लीट शूद्र वर्क है। अब एक तरफ गुरुकुल के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भेजा गया कि थ्योरी पढ़िए, सिद्धांत पढ़िए। वहां जाकर के चाहे राजा का बेटा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, वो कोई भी हो, जमीन पर सो बेटा, अपने हाथ से बना, गुरु को खिला और खुद खा। पहले भिक्षा मांग करके आ। भिक्षा मांगने से चूंकि अहंकार का नाश होता है, तो राजा का बेटा भी भिक्षा मांग करके लाता था। और उसके बाद इससे बड़ा इक्विटी का उदाहरण बताइए, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे किसी का भी बेटा हो, वो भिक्षा मांगने जा रहा है, पहले गुरु को बना के करवा रहा है, उसके बाद अपना भोजन पानी वो कर रहा है। उसको माँ के हाथ का भोजन नहीं मिल रहा, उसको पिता का हाथ सिर के ऊपर नहीं मिल रहा, उसको घर की सुख सुविधाएं उसको नहीं मिल रही। गर्मी के अंदर भयंकर गर्मी और सर्दी के अंदर भयंकर शीत, और जब बरसात आती तो झोपड़ी की वो छत से पानी चूता था। और दूसरी तरफ शूद्र को गुरुकुल क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि वो स्किल ओरिएंटेड है, वो प्रैक्टिकल है पूरा की पूरा। अब पिता फर्नीचर बना रहा है या मशीनरी बना रहा है, तो बेटा उसको देख करके सीख रहा है, वहां पे वो प्रैक्टिकल सीख रहा है पूरा की पूरा। वहां पर उसको, वहां पे माँ के हाथ का भोजन है, उसके सिर पे पिता का हाथ भी है, उसको सब कुछ वहां पर उपलब्ध है, उसको वहां पर जो सुविधा घर पे उसको दी गई है। तो कोई राग द्वेष मूलक नहीं है। हमारे यहाँ दलित शब्द हमारी संस्कृति का है ही नहीं। यहाँ सभी एक दूसरे के रक्षक होते हैं, सब, कोई किसी का भक्षक नहीं होता, सब एक दूसरे के पोषक होते हैं, कोई किसी का शोषक नहीं होता। आखिरी एक शब्द जिस पे बड़ी बात करने की आवश्यकता है, जाति। जाति जो है ये समाज का, धर्म का भूषण है, दूषण नहीं है। जाति को बड़े विकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया। जाति सब जगह है, जाति फल में भी है, जाति सब्जी के अंदर भी है, जाति मिट्टी के अंदर भी है। कुछ फल ऐसे हैं कि आयुर्वेद में उन्हें कहा गया कि अगर किसी को कब्ज हो रही है तो उसको अमरूद ही काम आएगा, उसको पपीता ही काम आएगा, और किसी को अतिसार हुआ है तो उसको केला ही काम आएगा। अब अगर किसी को अतिसार हुआ है, उसको आप अमरूद और खिला दीजिए, क्या होगा जी उसका? अब फल वाले के पास फल लेने जाए, वो कहे कि मेरे लिए तो सब फल एक जैसे हैं, चीकू संतरा आम सब एक जैसे हैं। जिसकी जहां उपयोगिता है उसका वहां विनियोग करना, ये प्रशस्त आर्ष सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत था। भगवत गीता की बात करते हैं ना कि सब भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता पे हाथ रख करके कसम खाओ हम भगवत गीता को मानते हैं, गीता जी के भवन भी बना दिए। गीता जी, तो गीता जी को मानेंगे और गीता जी के अंदर जो लिखी हुई है उसको नहीं मानेंगे। भैया पहला ही अध्याय उठा लीजिए भगवत गीता का, पहले अध्याय के अंदर ही कहा गया कुल धर्मा जाति धर्माश्च शाश्वता। कुल धर्म जाति धर्म शाश्वत है। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण से? अधर्माविद भवात कृष्ण है प्रदुष्यंती कुल स्त्री है स्त्री सुदुष्टेषु कौन्तेय जायते वर्ण संकर है संकरो पतका यही कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। एक सज्जन अभी प्रयाग विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जाति की बात है। अरे भैया हमारे शास्त्रों में जाति है, जातिवाद नहीं है। तुम राजनेता लोग फैला रहे हो जातिवाद। हमारे यहाँ प्रत्येक जाति का सम्मान है, प्रत्येक जाति को अधिकार है, प्रत्येक जाति का सम्मान है। शूद्र में मेरा हॉस्पिटल अस्पताल हमारे यहाँ नहीं थे, एक उनमें से एक जाति आती है नाई, सैनी, सुनार, ये लुहार, ये सारी शूद्र जातियां हैं। ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार मैं ब्राह्मण हूं, गौ सेवा मेरा कर्तव्य है, लेकिन गाय का दूध निकालना मुझे वर्जित किया गया। गाय के थन को चोट ना पहुंचे, वो कार्य किसका? वो कार्य सैनी का, माली का। वो दूध निकालता है, वो दूध भगवान के ऊपर भी चढ़ता है, उसको हम भी पीते हैं, उससे घी भी बनता है। भैया कहां कर दिया गया स्पृश्यता? 5 उंगलियां हमारे हाथ में है, पांचों असमान है। ये असमान संतुलन, कार्य के संतुलन को बनाने के लिए है। काट के पहले पांचों को एक समान कर दो, देखो क्या होता है।
इस पृथ्वी पे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, कहीं मैदान है। प्रकृति की व्यवस्था को बनाने के लिए कहीं दिन होता है तो कहीं रात हो रही है। सृष्टि का चक्र रुक जाएगा भैया। लेकिन ये असमानता का ये मतलब नहीं है कि ये उंगली छोटी है तो इसका शोषण कर दिया हो, या ये छोटी है तो इसका शोषण कर दिया हो, इसको काटो तो खून नहीं निकलेगा। बड़ी विकृतियां हमारे यहां पर उत्पन्न की गई हैं जाति के नाम पर, और जातिवाद फैलाया इन नेताओं ने जो आज तक जारी है। जहां जाति देखनी है वहां नहीं देखेंगे, और चुनाव के अंदर जातिवाद ऐसा फैलाएंगे। इतने प्रतिशत ब्राह्मण, जब न्यूज आती है ना, पत्रकार बंधु भी यहाँ पे हैं, जब न्यूज आती है उनसे निवेदन करूंगा तो दिखाते हैं न्यूज के आंकड़ों में, इतने ब्राह्मण, इतने राजपूत, इतने गुजर, इतने मीणा, इतने जाट, इतने माली हैं, इतना एससी, इतना एसटी, और एक साथ दिखाया जाएगा 25%, 28% मुस्लिम। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहां तो 36 जातियां हैं, उधर 73 फिरके हैं। 73 फिरके हैं, शिया, सुन्नी, अहमदिया, मोपला, बरेलवी, तबलीगी, देवलिया। कभी सुना आपने कि इतने प्रतिशत शिया, इतने प्रतिशत सुन्नी, इतने प्रतिशत तबलीगी, इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत ये? ना। मात्र जाति के नाम पे विभाजित करने का काम हिंदुओं को, राजनेताओं का आखंड सत्ता को प्राप्त करने का व्यामोह। जो हिंदुओं के आंसू पहुंचने के नाम पर राम का, गाय का और गंगा का नाम लेकर के आता है, एक नया दर्द हिंदुओं की झोली में आकर के डाल जाता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वाह भाई, भगवान राम को अब मोदी जी लेके आएंगे अंगुली पकड़ के। एक कार्टून दिखाया गया कि साहब छोटे से बच्चे को राम जी को पकड़ करके ला रहे हैं। अरे भैया, राम जी को लाने वाली तो गौ माता थी। ये पृथ्वी जब पापाक्रांता हो जाती है और नारायण की शरण में जब पापाक्रांत होकर के पृथ्वी जाती है करुण पुकार करने के लिए, तो भगवती गौ का रूप धारण करके वो पृथ्वी माता जाती है, गौ का रूप धारण करके। और गौ मांस के निर्यात में भारत आज नंबर 1 पर है पूरे विश्व में। क्या बातें करते हैं हम धर्म की, राम की। हाँ बताएं।